یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. بطور خاص یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نا تمہیں. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نا تمہیں جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. شکریہ شکریہ. اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ایسا رنگ ہے ان کی غلامی کے رنگ میں. ایسا رنگ ہے ان کی غلامی کے رنگ میں. یہ رنگ اب کسی سے چھڑایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور آخری شعر پیش کرو نعت پاک کا ملاحظہ فرمائیں. حسن نبی کہاں کہاں لفظوں کی مملکت. حسن نبی کہاں کہاں لفظوں کی مملکت. دریا کا اس جزیرے میں لایا نہ جائے گا. مقطع ملاحظہ فرما لینا کے بعد لے کر چلے تو ہو سرکار پر نہیں. لے کر چلے تو ہو ڈرے سرکار پر نہیں. لیکن وہاں سے لوٹ کے شکریہ شکریہ شکریہ. لے کر چلے تو ڈرے سرکار پر نہیں. لیکن وہاں سے لوٹ کے آیا
ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں. پھر عشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے. کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے. بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے. میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے. قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے. اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار. میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام
آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عالمی منظر کے ساتھ میں عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ شیخ حسینہ نے لیا وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف، لگاتار دوسری بار بنی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم کے مشیر بم دھماکے میں بال بال بچے، 6 محافظ ہلاک۔ اور عراق میں تشدد کا سلسلہ جاری، 2 کار بم دھماکے، 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بنگلہ دیش میں آج شیخ حسینہ نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا۔ شیخ حسینہ دوسری مرتبہ لگاتار اور تیسری مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی ہیں۔ আমি সংবিধানের রক্ষণ সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব। بنگلہ دیش میں اپوزیشن کے بائیکاٹ کے بیچ 5 جنوری کو ہوئے عام انتخابات میں عوامی لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہوئی اور اب عوامی لیگ کی لیڈر شیخ حسینہ نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف بھی لے لیا ہے۔ صدر عبدالحامد نے صدارتی محل میں شیخ حسینہ کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف دلایا۔ شیخ حسینہ کے علاوہ دیگر افراد کو بھی مختلف وزارتوں کے عہدے کا حلف دلایا گیا۔ اس طرح 48 ارکان پر مشتمل بنگلہ دیش کابینہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ 29 ارکان پارلیمان نے کابینی وزراء کے طور پر حلف اٹھایا، جبکہ 17 کو وزیر مملکت کے طور پر حلف دلایا گیا۔ سابقہ شیخ حسینہ حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکی دیپو منی، وزیر داخلہ رہ چکے محی الدین خان عالمگیر اور سرنجیت سین گپتا کو اس بار کابینہ میں جگہ نہیں ملی۔ شیخ حسینہ تیسری مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی ہیں۔ اس بار وہ دوسری مرتبہ لگاتار وزیر اعظم بنی ہیں، جبکہ اس سے قبل 1996 سے 2001 کے دوران بھی وہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ 18 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن گروپ نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اپوزیشن گروپ کو بنگلہ دیش کی سب سے اہم اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈ کر رہی تھی۔ فی الوقت بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ ہیں۔ پچھلے سال نومبر سے شروع ہوئے اپوزیشن کے احتجاج کے دوران بنگلہ دیش میں 160 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ شیخ حسینہ نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لے لیا، لیکن بنگلہ دیش ایک نئی مصیبت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ مخالفت، مظاہرے، ہڑتال، تشدد، آگزنی مانو بنگلہ دیش کا مقدر بن گیا ہے۔ انتخابات کے بعد بھی تشدد تھم نہیں رہا، بلکہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 2 بیگموں کی ضد اور خواہشات کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس لڑائی میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کمزور طبقے کے لوگ اور اقلیتیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے عمل کے تحت انتخابات میں ووٹ ڈالا۔ بنگلہ دیش میں چناؤ کے بعد سے ہنسا کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ وپکشی دل اس چناؤ کو ایک ڈرامہ قرار دے رہے ہیں۔ دراصل چناؤ میں مکھیہ وپکشی دل بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے نیترتو میں 18 مکھیہ پارٹیوں نے حصہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی راجنیتک طاقت جماعت اسلامی پر عدالت کے آدیش کے چلتے پرتیبندھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ چناؤ نہیں لڑ سکتی۔ نتیجتاً چناؤ ایک طرفہ ہو گیا اور شیخ حسینہ کو زوردار جیت حاصل ہوئی۔ حالانکہ وپکش اس سے سنتوشٹ نہیں ہے۔ ان کا الزام ہے کہ چناؤ میں جم کر دھاندلی ہوئی ہے اور شیخ حسینہ نے ستا کا بھرپور درپیوگ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاسی رسہ کشی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں وہاں کے عام آدمی۔ ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی سہایتا نہیں ملی۔ اگر وہ ہماری مدد کرتے تو ہمارے پریوار کو گاؤں نہیں چھوڑنا پڑتا۔ اب ہم لوگ ندی کے دوسری طرف رہ رہے ہیں۔ چناؤ کے بعد سے ہی پورے بنگلہ دیش میں حالات خراب ہیں، لیکن کچھ علاقے مثلاً ڈھاکہ، پشچمی دیناجپور اور ابھیانگر میں حالات کافی تلخ ہیں۔ ان علاقوں میں خاص طور پر الپ سنکھیکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نومبر سے اب تک جاری ہنسا میں 160 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس دوران حالیہ چناؤ میں ملی سفلتا سے اتساہت شیخ حسینہ کا جوش بھی ٹھنڈا پڑتا نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے تیور پہلے کی طرح تیکھے ہیں۔ بنگلہ دیش تیزی کے ساتھ اراجکتا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور انترراشٹریہ سمودائے نے بھی موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے۔
अमेरिका का कहना है कि हालिया चुनाव को रद्द कर फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसी ही मांग अन्य देश भी कर रहे हैं। I hesitate to call it even an election. What we have seen is basically a power game between the two sides, and an extremely intolerant and violent manifestation of this zero-sum game of politics. बांग्लादेश में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा तो उसकी कुछ अहम वजह है। मौजूदा सूरत हाल कट्टरपंथ और उदारवाद के बीच झगड़े में तब्दील हो गई है। शेख हसीना का कहना है कि बीएनपी ने समझौते के लिए ऐसी मांगे रखी हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, जैसे कि जेल में बंद अपने सभी नेताओं की रिहाई। इनमें से बहुत से लोगों पर गंभीर इल्जाम है और अगर हसीना हुकूमत खालिदा जिया की मांगे मान लेती है तो उसके कमजोर और लाचार होने का संदेश जाएगा। इस दरमियान बांग्लादेश की 22 अरब डॉलर की कपड़ा इंडस्ट्री ठप पड़ गई है। लोग बेरोजगार हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश मुसीबत की गर्त में धंसता चला जा रहा है। और आइए अब रुख करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, जहां आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर अमीर मकाम बम धमाके में बाल बाल बच गए। धमाका पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सड़क के किनारे किया गया। इस हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर और वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर अमीर मकाम के काफिले पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिला में बम हमला हुआ। इस हमले में अमीर मकाम तो बच गए, लेकिन उनके काफिले के साथ चल रहे सिक्योरिटी एहलकारों में से 6 जवान हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अमीर मकाम के काफिले पर हमला सड़क के किनारे आईईडी नस्ब करके किया गया। अमीर मकाम का काफिला जैसे ही टारगेटेड मकाम पहुंचा, वहां नस्ब आईईडी को रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया गया। अमीर मकाम लोकल बॉडीज की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए शांगला जा रहे थे। धमाके की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस किस्म की कार्रवाई ममनुआ तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से की जाती है। माजी में भी तालिबान ने कई मरतबा अमीर मकाम को निशाना बनाकर हमले किए हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम दफ्तर ने अमीर मकाम के काफिले पर हुए हमले की मजम्मत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। 80 फीट की हाइट पर ये हैंड स्टैंड करने वाला है। This is unbelievable! हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राहे नजात, मगफरत का रास्ता राहे नजात, राहे नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकतब है। इराक में तशद्दुद बदस्तूर जारी है। आज दारुल हुकूमत बगदाद में 2 अलहदा कार बम धमाकों में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की जान गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इतवार की सुबह इराक में मौत का पैगाम लेकर आई। बसों और टैक्सियों को निशाना बनाकर 2 बम धमाके किए गए। इन धमाकों में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक धमाका दारुल हुकूमत बगदाद के वस्ती शहर अल अलावी में एक बस स्टेशन के बाहर किया गया। यहां धमाका खेज मादे से भरी एक कार को धमाके से उड़ाया गया। धमाके में 9 अफराद हलाक हुए, जबकि दीगर 16 अफराद जख्मी हुए। एक और कार बम धमाका बगदाद के मजाफाती इलाके हुर्रिया में पार्क की गई बसों और टैक्सियों को निशाना बनाकर किया गया। इस धमाके में 4 अफराद की जान गई, जबकि 1 दर्जन अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने हलाकतों की तस्दीक की है। हालांकि सन 2007 के बाद से इराक में तशद्दुद में बतदरीज कमी दर्ज की गई थी, ताहम गुज़िश्ता साल इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक सन 2013 में इराक में मसलकी तशद्दुद में 8,868 हलाकतें हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर इराक के सूबे अंबर में फलूजा शहर को मिलिटेंटों के कब्जे से छुड़ाने की हुकूमत की कोशिश अब भी जारी है। फलूजा शहर में मिलिटेंट दनदनाते फिर रहे हैं और फौज को शहर पर कंट्रोल करने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। फलूजा में आज मिलिटेंटों ने इराकी फौज का एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया है। बगदाद से 65 किलोमीटर दूर मगरिब की जानिब वाक़ अंबर सूबा का फलूजा शहर अब भी मिलिटेंटों के कब्जे में है। फलूजा शहर में 400 मिलिटेंट फौज के फजाई हमलों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। फलूजा में कई मकामात पर मिलिटेंटों और फौज के हामी मुसल्लह कबायली ग्रुप के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। अनबर सूबा में 28 दिसंबर को एक रुकने पार्लियामेंट की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद फूट पड़ा, जिसने अब संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। 28 दिसंबर से अब तक अनबर सूबा में जारी तशद्दुद में कम से कम 60 अफराद हलाक हो चुके हैं। 43 अफराद मादी शहर में हलाक हुए हैं, जबकि फलूजा में 17 अफराद मारे जा चुके हैं। दोनों शहरों में मजमूई तौर पर 297 अफराद जख्मी हुए हैं। इराक की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हमसाया मुल्क शाम में बशारुल असद की फौज से निबुर्द आजमा बागी भी इराक में दाखिल होकर इराकी फौज के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक फलूजा शहर में ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अनबर सूबा में तशद्दुद के सबब 11,000 से ज़ायद खानदान बेघर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इराक के वज़ीर आज़म नूरी अल-मालिकी ने इंतहा पसंदी के खिलाफ मुल्क में इत्तेहाद की अपील की है। दारुल हुकूमत बगदाद में हफ्ते के रोज सालाना सियासी इज्तिमा से खिताब करते हुए नूरी अल-मालिकी ने कहा कि इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग किसी एक कौम, मजहब या किसी एक फिरके की नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी पूरे मुल्क की है। सालाना सियासी इज्तिमा से अपने खिताब में नूरी अल-मालिकी ने मुल्क में इत्तेहाद की अपील की। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग सबको मिलकर लड़ना होगी। उन्होंने कहा कि ये जंग किसी एक फिरके, मजहब या जमात की नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की है। नूरी अल-मालिकी ने यह भी तंबीह की कि जो इस बात की अहमियत को नहीं समझेगा वो देर या सवेर इसकी कीमत अदा करेगा। नूरी अल-मालिकी की इस अपील को मुल्क की मगरबी रियासत अल-अंबार में जारी हालात के पस मंजर में काफी अहम माना जा रहा है। لا معركتكم جميعا شئتم أم أبيتم ومن لا يرى برأي البصيرة إن لم يكن اليوم يدفع الثمن من العراقيين فسيدفعه غدا هي معركتكم جميعا। सुन्नी गलबे वाली रियासत अंबार में फौज और उससे मुल्हिक सुन्नी कबायली अलकायदा से मुंसलिक मिलिटेंटों के खिलाफ महज आराई में मसरूफ हैं। मिलिटेंटों ने फलूजा और अमादी के कुछ हिस्सों पर गुज़िश्ता दिनों कब्जा कर लिया था। अब फौज इस कोशिश में है कि इन इलाकों से मिलिटेंटों का कब्जा खत्म कराया जाए। बताया जाता है कि अगरचे फौज ने इन शहरों में पोजीशन संभाल ली है, ताहम अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, शहरियों के बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा,
और दूसरे शहरियों के मुमकिना जानी नुकसान से एतदाल पसंद कबायलियों का इंतहा पसंदों की तरफ झुकाव का इम्कान। लेकिन इन खदशात के बावजूद इराक की वजारत दिफा के तर्जुमान मोहम्मद अल अस्करी ने इंतबाह जारी किया कि हुकूमत का सब्र खत्म होने को है और अगर कोई हल नहीं निकलता है तो फौज और कबायली जंगजू फलूजा और रमादी से मिलिटेंटों को खदेड़ने के लिए चढ़ाई करेंगे। यहाँ काबिल गौर है कि फलूजा और रमादी पर मिलिटेंटों के कब्जे को सन 2011 में इराक से अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद से इराक की शिया इख्तिदार वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। القتال في المناطق المبنية وفي المدن قتال صعب بالنسبة للقوات المسلحة لأنها تخشى أن تحدث خسائر، ولذلك نعطي حلول كثيرة خاصة لرؤساء العشائر والحكومة المحلية بطرد هؤلاء خارج المدن، وبالتالي عندما يكونون في الصحراء أو مناطق أخرى بالتأكيد سيكون علاجهم أسهل مما يكون في المدن۔ इस बीच इत्तलात मिल रही हैं कि फलूजा और रमादी के दरमियान वाक़े अल बुबावी गांव में जुमे के रोज फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़पें हुई। एक पुलिस एहलकार ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि गांव के अतराफ सड़क के किनारे नस्ब किए गए बमों के फटने से मुतादिद फौजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तशद्दुद के इन वाक़यात में हुए मुमकिन जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एरिल शेरोन का जज़्द खाकी अवाम के आखिरी दीदार के लिए इसराइली पार्लियामेंट के सामने एक प्लाजा में रखा गया है। अवाम व खवास की बड़ी तादाद शेरोन के आखिरी दीदार के लिए प्लाजा बिल्डिंग पहुंच रही है। आज इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहुद अलमर्ट ने भी शेरोन के जज़्द खाकी का दीदार किया। एरिल शेरोन की कल आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं एरिल शेरोन की सियासी जिंदगी पर। एरिल शेरोन इसराइली फौज और सियासत के बाअसर शख्सियत थे, लेकिन उनका करियर तनाज़ात में घिरा रहा। एरिल शेरोन मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों के सख्त तरीन हामी थे, मगर उनके आखिरी इक़दामात में से एक गजा पट्टी से इसराइली फौज की वापसी ने उनके मद्दाहों को हैरान कर दिया। थोड़े अरसे के बाद उनका करियर एकदम से उस वक्त खत्म हो गया जब मुतादिद स्ट्रोक्स की वजह से वो कोमा में चले गए। अपनी नौजवानी में उन्होंने खुफिया यहूदी मुसल्लह तंजीम बगाना में शमूलियत इख्तियार की और 1948-49 की अरब इसराइल जंग में बतौर पल्टून कमांडर शिरकत की। 1950 की दहाई में उन्होंने यूनिट 101 नामी एक खुसूसी दस्ते की क़यादत की, जिसका काम फिलिस्तीनी मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां करना था। एरिल शेरोन ने इसराइल के क़याम से लेकर अब तक मुल्क की तमाम जंगों में शिरकत की थी और इसीलिए उन्हें एक निडर फौजी और बेहतरीन अस्करी मंसूबा कार तस्वुर किया जाता था। 1956 में स्विस जंग में उन्होंने छाता बरदारों की एक ब्रिगेड की क़यादत की और मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंचे। जून 1967 की जंग में एरिल शेरोन सहराए सीना में एक डिवीजन की क़यादत कर रहे थे और मिस्री फौज के खिलाफ उनकी कामयाबी ने इसराइल के सीना जजीरे नुमा पर मुकम्मल कब्जा करने में अहम किरदार अदा किया। 6 साल बाद जब मिस्र और शाम ने इसराइल पर दोबारा हमला किया तो शेरोन के डिवीजन ने मिस्र की 3rd आर्मी को सहराए सीना में रोक दिया, जिसकी वजह से जंग का रुख पलट गया और इसराइल को कामयाबी हासिल हुई। 2 माह बाद एरिल शेरोन एक नई दाएं बाजू की लिकुड पार्टी के टिकट पर इसराइली पार्लियामान के रुकन मुंतखब हुए। ताहम अगले साल ही उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक रॉबिन का मुशीर बराए सिक्योरिटी बनने के लिए रुकनियत छोड़ दी। 1977 में वो दोबारा इसराइली पार्लियामान का हिस्सा बने और 1981 में वजीर दिफा। यासिर अरफात की PLO की जानिब से जुनूबी लेबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमलों के बाद 1982 में एरिल शेरोन ने हमसाया मुल्क पर हमले की मंसूबाबंदी की। इसराइली वज़ीर आज़म को मुत्तला किए बगैर ही उन्होंने इसराइली फौज को बैरूत तक भेज दिया। इस कार्रवाई के बाद ही PLO को लेबनान से निकाल दिया गया। इस इक़दाम से PLO को तो लेबनान छोड़ना पड़ा, मगर इस कार्रवाई की वजह से इसराइल के ज़ेर इंतजाम फिलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों के 2 कैंपों में लेबनानी ईसाई मुसल्लह अफराद ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया। सबरा और शातीला कत्लेआम के नाम से जाने वाले इन वाक़